In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus online lectures. This lecture is for grade 2 for the subject of English, and we are going to begin unit number 21, which is The Man Who Became Rich Again. And this is the first lecture from this unit. We are going to do reading, word meanings and question answers from this unit. So before we begin, make sure that you have your notebook, your complete stationery and your English student's book with you. I am sure that you are listening all the lectures very carefully and attentively and doing all classworks and homeworks. So let's begin. For writing word meanings and question answers in your notebook, you have to prepare your classwork notebook page, and you have to prepare your index by writing serial number, date and topic. Okay, please open your English students book page 116. The Man Who Became Rich Again. इसके नेम से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई मैन है जो कि पहले रिच था, फिर वो पुअर हो गया, उसकी वेल्थ सारी चली गई और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो फिर से रिच हो गया. इन दिस लेसन द मैन हु बिकेम रिच अगेन will come to know that a man who lived in Baghdad, he lost all his wealth and became poor. One day he slept unhappy. Of course, as he was poor, तो वो happy तो नहीं रहता होगा. He slept unhappy and saw a dream. A speaker who said, "Go to Cairo." He set out for Cairo, but when he arrived there, it was evening. He slept in the mosque. Suddenly, a band of thieves entered in the mosque. और फिर उसके बाद क्या हुआ, we will learn in this lesson. So open your classwork page and I will give you the meanings of words here. You will write them down in your notebook. I am going to start reading. You will read it with me on page number 116. जहाँ से मैं रीड कर रही हूँगी आप वहाँ फिंगर रखेंगे और मेरे साथ साथ रीड करते जाएंगे. The man who became rich again. There lived once in Baghdad a man. बगदाद एक सिटी का नाम है. जिस तरह आपका सिटी क्या है, साहिवाल, इसी तरह बगदाद भी एक सिटी का नेम है. Who lost all his wealth and became so poor that he could earn his living only by hard labor. Do you know what does hard labor mean? हार्ड लेबर वो होती है जो लोग अपने हाथों से बहुत मुश्किल काम करते हैं, ब्रिक्स उठाने का काम करते हैं, बिल्डिंग्स बनाने का काम करते हैं, या जो लोग इस तरह के जो मेहनत वाले लेबर वाले काम करते हैं. One night he lay down to sleep unhappy and saw in a dream a speaker who said to him, "The fortune is in Cairo, go there." Do you know what is Cairo? Cairo is again a city of Egypt का कैपिटल है. जिस तरह पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है, इस्लामाबाद, इसी तरह एक कंट्री है इजिप्ट, उसका जो कैपिटल है वो है कायरो. तो वो जब ये जो आदमी था वो सो गया मॉस्क में, तो उसको ड्रीम में एक कोई मिला, कोई आया उसके ड्रीम में. जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि वो एक क्लाउड में एक वाइट ड्रेस वाले मैन है, वो एक्चुअली उसका ड्रीम है. वो आए और उन्होंने कहा कि योर फॉर्च्यून इज़ इन कायरो, गो देयर. कि तुम अगर कायरो चले जाओगे तो तुम लकी हो जाओगे, तो वहाँ चले जाओ, तुम्हारी लक कायरो में है. सो ही सेट आउट फॉर कायरो, बट व्हेन ही अराइव्ड देयर इट वॉज इवनिंग. ही ले डाउन टू स्लीप इन अ मॉस्क. वो जब कायरो पहुँचा तो वहाँ पे क्या था, इवनिंग का टाइम हो चुका था. सो वो वहाँ जाके एक मॉस्क में सो गया. शॉर्टली a band of thieves entered the mosque and made their way into the adjacent house. Okay, उसने वो जब वहाँ पे लेट गया मॉस्क में, तो कुछ थीव्स जो थे वो मॉस्क में आ गए. शॉर्टली मीन्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े ही टाइम के बाद कुछ
थीव्स मॉस्क में आ गए और जो मॉस्क है उसके साथ वाले घर की तरफ उन्होंने अपना रास्ता बनाया। जो थीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब किसी घर में रॉबर्स आते हैं, थीव्स आते हैं जो चोरियां करते हैं या जो लोगों के घरों पे डाका डालते हैं, वो क्या करते हैं, वो आके किसी घर का या तो दरवाज़ा तोड़ लेते हैं या उनकी दीवार तोड़ लेते हैं या दीवार फलांग लेते हैं। तो इसी तरह वो लोग मॉस्क से एंटर हुए और मॉस्क के साथ वाले घर में उन्होंने जाना था, वहाँ के लिए रास्ता बनाया उन्होंने। बट द ओनर वोक अप एंड क्राइड आउट मीन्स शाउटेड आउट। उसने ज़ोर से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिस तरह लोग कहने लग जाते हैं चोर आया चोर आया। वेयर अपॉन द पुलिस केम टू हिज हेल्प, the robbers made off, but the owner entered the mosque and finding the man from Baghdad asleep there, laid hold of him. जो उस घर का ओनर था वो उठ गया और उसने जाके जब देखा कि एक आदमी वहाँ मॉस्क में सो रहा है, उसने उसको पकड़ लिया। The chief of the police was called, who asked the man why he came to Cairo. The man told him about his dream. वो जो मैन था, क्योंकि जो उस घर का ओनर था, उसने समझा कि शायद ये जो आदमी है ये ही इसी ने थीव्स बुलाए हैं या ये थीव्स का ही पार्टनर है। उसने इसलिए उसे पुलिस को पकड़ा दिया और पुलिस के चीफ ने उसे पूछा कि तुम यहाँ कायरो क्यों आए हो अगर तुम बगदाद से बिलोंग करते हो। तो उस आदमी ने अपने ड्रीम के बारे में बताया कि मैंने ड्रीम में देखा था, किसी ने मुझसे कहा था गो टू कायरो। द चीफ chuckled and said, thrice I have seen in a dream one who said to me, there is in Baghdad a house and its courtyard there is a great sum of money buried. Go there and take it. Yet I didn't go. जो वो पुलिस का थीव था, उसने जब इस आदमी का ये ड्रीम सुना तो वो हंसने लगा और उसने कहा कि मैंने बिल्कुल इसी तरह का ड्रीम 3 टाइम्स देखा है। मुझसे कोई कहता है कि बगदाद में जाओ, वहाँ पे एक हाउस है, उसके यार्ड में, उस घर के सहन में एक बहुत सारा ट्रेजर, बहुत सारी मनी और गोल्ड बरीड है, वहाँ जाओ और उसे ले लो। लेकिन मैं अभी तक नहीं गया। फिर उस पुलिस चीफ ने उस आदमी को उस घर का जब स्ट्रक्चर बताया कि वो घर ऐसा ऐसा है, तो उस आदमी को पता चला कि वो तो बगदाद में मेरा घर है। द हाउस दैट चीफ डिस्क्राइब्ड वॉज द मैन्स ओन हाउस इन बगदाद, सो ही रिटर्न्ड टू हिज हाउस एंड डग हिज कोर्टयार्ड। लकीली ही डिस्कवर्ड अ ग्रेट ट्रेजर देयर। जब वो वापस अपने बगदाद गांव में गया, वहाँ जाके जब उसने अपने घर में जो कोर्टयार्ड था, उसका जो घर का सहन था, उसने वहाँ पे उसने खुदाई की और उसे नीचे से बहुत सारा ट्रेजर मिल गया। और फिर क्या हुआ, वो अगेन वेल्दी हो गया, अगेन रिच हो गया। डिड यू एंजॉय दिस स्टोरी? आई रियली एंजॉयड इट। ऑन पेज 117 here the questions are given and you now have to write down these questions and their answers in your notebook. So prepare a new page for questions and answers. Write down first question in your notebook. Question number 1 is, what are the 2 settings of this story? I already have explained you that what does setting of the story mean. Setting of the story का मतलब ये है कि ये स्टोरी कहाँ कहाँ पे, इस स्टोरी के सीन्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो कहाँ कहाँ हैं? इन बगदाद एंड द मॉस्क ऑफ कायरो। इस स्टोरी में कौन कौन सी 2 प्लेसेस हैं? बगदाद और कायरो की एक मॉस्क। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट प्रॉब्लम डिड द मैन हैव? उसके साथ क्या प्रॉब्लम आई थी? वो पहले रिच था और फिर उसकी सारी वेल्थ उससे छिन गई और वो पुअर हो गया। ही वॉज अ पुअर मैन, ही कुड नॉट अर्न हिज लिविंग, ही कुड अर्न हिज लिविंग बाय हार्ड लेबर। के उसे अर्निंग कैसे करना पड़ती थी? हार्ड लेबर से। क्वेश्चन नंबर 3 इज, वाई डिड ही गो टू कायरो? वो क्यों गया? क्योंकि उसने ड्रीम में देखा था कि किसी ने उसे बताया था वो अगर कायरो जाएगा तो वो लकी हो जाएगा। बिकॉज ही saw a dream, a speaker who said to him, the fortune is in Cairo, go there. Question number 4 is, how was his problem solved? उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुआ? The policeman told him about his dream and the police chief solved his problem. Question number 5, the last question is, okay, this question is not to be written in your notebook क्योंकि इसमें आपके पास 3 options हैं and you have to pick the right one on your book
आप ये वाला क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नहीं लिखेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी. मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी मीन्स कि इस स्टोरी में ओवरऑल क्या डिस्क्राइब किया हुआ है. तो ऑप्शन 1 इज आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू. ऑप्शन बी इज लाइफ इज सिंपल एंड इंटरेस्टिंग. ऑप्शन सी इज बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव. क्या है इस स्टोरी का मेन थीम. इट इज ऑप्शन ए, आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू. आपने ऑप्शन ए पे टिक मार्क करना है ऑन पेज 17 ऑफ योर बुक. हैव यू डन दिस. ओके, so let's now discuss our today's homework. You have to open your diary, write down date if you haven't written it yet, and subject is English. Then note down your homework. We have done question 1 till 5 in our notebook. You have to learn these questions. Then another homework is from workbook. You have to do workbook page 82 and 83. Okay, dear grade 2 students, get your homework done by the next lesson. Allah Hafiz.